Once again, we're back with our podcast at Noreen Skin Clinic. Today, I've invited a very, very interesting person. I'm a very big fan of hers. I saw her project recently and I was glued to her acting, honestly. And I'm feeling so fortunate, that I wouldn't have expected to meet her so soon. But कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ आपको इतनी अट्रैक्ट करती है कि आप यू रियली रियली वांट टू मीट दैट पर्सन, यू रियली वांट दैट थिंग टू हैपन. And we are going to talk about her favorite topic, manifestation, which I completely and blindly believe in. So today I've invited a very dear friend's friend actually, because I'm meeting her for the first time. And I'm so thankful to her for coming to us at such a short notice. As soon as her project has ended, and I think she has had lots of followers. Her background has been in education. She's been an excellent educator. But today we're going to talk about how her transition happened from being an educationist to an actress, and what her journey tells us about, and what she has learned from switching one career to the other, and which I really want to talk about today, apart from the skincare that she has to tackle during her shoots. Please welcome Rabia Afzal. You must have seen her recent project, Kafil, one of my favorite dramas. And I believe she acted as Sanam Saeed's sister-in-law. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Really, thank you so much. No, it's my pleasure. Thank you for having me. Very, very impressive background that you have. Thank you. I believe apart from being an educationist, you were a content creator. You still are a content creator. I was going through your account. Yes. Excellent work. Very funny videos. Thank you. If I'm ever feeling low, trust me, I go through your content. Thank you so especially much. in the Thank night. you. Thank you. So, can you tell us something about what you really, really learned from switching from one career to the other, Rabia? First thing, above everything, I would say never ever in your life pull yourself back in taking a risk. हमेशा अगर आपको खुद पर यकीन है, if you're content and if you're confident कि जो होगा अच्छा होगा, और कभी कभार अक्सर होता है हम लोग बोल देते हैं कि trust him, but आप करते नहीं हैं. तो that's the main thing. और कभी कभी रिस्क लेना आई थिंक वो आपके फेवर में चला जाता है. अक्सर ऐसा होता है आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, कैसे जाएगा आगे, रास्ता कैसे निकलेगा. बट आई थिंक अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं और किसी और से जंग नहीं है, आपकी खुद से जंग है, तो आई थिंक रास्ते बन जाते हैं. दैट्स द मेन लेसन विच आई लर्न फ्रॉम माई ट्रांजिशन. It's always better, I believe, to take risks than having regrets later on. Definitely. Even with my journey, I have done, so many multiple things and tried and tested. And I always tell people, it's okay if it doesn't work out for you. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ would work out for you. At least you tried. At least you tried. Yes. So what made you, Rabia, switch to being an educator and then starting your content creation and getting into acting? I believe you did go to Napa for your acting skills first. Yes. How was that journey? Actually, कोई plan नहीं था, to be very honest. और मैं teaching कर रही हूँ since I had my first child, just out of boredom and keeping myself productive. But after my third child, my last child, उसके बाद मेरा बहुत बड़ा break आ गया था. I was in my comfort zone when he turned 5. तो मुझे लगने लगा that मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना, मैं सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैं सिर्फ घर संभालूँ, बच्चे देखूँ, and that's it. और बच्चे भी बड़े हो गए थे उस टाइम तक इतने कि वो बिल्कुल हाथों वाले बच्चे नहीं थे. And I have been like that always, running, कुछ ना कुछ करते रहना है, being productive. Absolutely. कुछ ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कर रहे हैं, नहीं. एक वो फीलिंग आती है ना that you are being productive, कुछ ना कुछ आप अच्छा कर रहे हो तो वो आपकी सोल को भी फीड कर रहा होता है. Yes. Positively. Yes.
तो आफ्टर दैट मेरे ब्रेक के बाद आई स्टार्टेड टीचिंग. आई स्विच्ड फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर. उसके बाद मैंने लॉकडाउन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, टीचिंग जो थी वो It was not for you. No, it was not for me. Zoom classes, और फिर it went so mechanical. The passion wasn't there for me to look after. तो मैं बहुत ज़्यादा I went into depression. I didn't realize it, but by the time when I realized, मैंने कहा no, it's not working for me. और हालांकि मैं उस वक्त अच्छा कर रही थी. मैं आई डिड IB ट्रेनिंग, इंटरनेशनल बैकलॉरेट की ट्रेनिंग की. आई वॉज टीचिंग फॉर एन IB स्कूल, बट आई डोंट नो, इट वॉजंट वर्किंग फॉर मी. और मुझे लिटरली ख्वाब आते थे जैसे मेरे दांत झड़ रहे, मेरे नेल्स झड़ रहे. और फिर देन आई सर्च्ड अबाउट इट. लाइक एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, कोई वर्क एंजाइटी है, वर्क डिप्रेशन. मैंने कहा इस तरह तो मैं नहीं रह सकती. आई कांट. समर ब्रेक था, ऐसे ही मुझे, अच्छा उससे पहले a friend of mine sent me during lockdown, end of the lockdown, he sent me एक workshop हो रहा है ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडी का. तो जस्ट गो फॉर इट, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में ही ऑनलाइन ले लो. मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या है. और वो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया. इट वाज ऑल गर्ल्स वर्कशॉप, ब्रिटिश काउंसिल का था. ओके. तो वो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया. उसके बाद पहला शो था वो इन पर्सन था प्रॉपर. वो शो किया तो फीडबैक बहुत अच्छा मिला सरप्राइजिंगली. ऑल्दो कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगी. नेवर एवर. I know, you know, like my family says to me I'm very funny and I make everyone laugh. But then when I watch these reels of people doing this stage comedy, मैं कहती हूँ कि oh my god, my biggest fear is कि what if they don't laugh on the joke? You know, उनको अगर हंसी नहीं आई तो मैं तो फिर क्या होगा. Was that an embarrassing moment? कभी ऐसा हुआ आपके साथ स्टेज पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हुआ. Okay. ऑनेस्टली नहीं हुआ. या फिर मैं इतनी what would I say, ignorant रही कि उस तरह. या बिकॉज आई नो हम कितनी स्ट्रगल करते हैं. जो अगर आपको जज कर भी रहा है ना तो ठीक है, इट्स सब्जेक्टिव. जरूरी नहीं यार किसी को हर जोक पसंद आए, समझ आए, तो इट्स ओके. डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. You know, Rabia, sometimes when I watch, I'm not going to name some comedians, but when I watch their reels, they're so funny. And जब audience की clip आती है, I do see some rude people sitting in the audience. And they actually, मुझे लगता है कि उनका गोल ये होता है कि जो stand-up comedian है उसको confuse करना, उसको embarrass करना, because they're just sitting with a straight face. Yeah. Then why are you here? इवन ऑन सोशल मीडिया ना, हेटर्स तो हर जगह मिलेंगे आपको. एक हार्मलेस सी वीडियो डाल दो आप, कुछ भी नहीं है उसमें, आप सिर्फ आपने कोई फनी सी कोई, तो उस पर भी पीपल विल कमेंट सो नेगेटिवली कि फिर बंदा सोचता है यार यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू कम टू माई प्रोफाइल, टू चेक माई रील्स एंड टू गो इन टू द कॉमेंट बॉक्स एंड देन यू नो आप टाइप कर रहे हो प्रॉपर कमेंट्स. आपके पास इतना फारिग टाइम है. I was watching one of your reels. उस पे आपका जो कैप्शन था, it was something like कि don't care what people think. Yeah. क्योंकि शुरू में जब बच्चियाँ, अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं young and they want to be content creators, they say कि नौरीन आंटी अगर हम लोग डालेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, and then after 6 months they come with that confidence and say we don't care what people. अच्छा ये कॉन्फिडेंस मेरे पास शुरू से नहीं था. शुरू में that's what I want to ask. Did you also go through that? शुरू में जब when I started acting, मुझे याद है मेरा पहला दूसरा प्रोजेक्ट था. even when I was doing कभी मैं कभी तुम, जब वो was a very big hit, तब भी even मीम से मोहब्बत के टाइम भी I wasn't confident enough कि मैं अपने comments on रख सकूं. मेरे comments off थे उस टाइम, क्योंकि मुझे ही डर लगता था लोग कुछ भी बोल देते हैं. तो इट्स गोइंग टू टेक अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ. मैं उसको कैसे फाइट बैक करूंगी, मैं उसको इग्नोर कैसे करूंगी. तो बाद में बाय द टाइम आई सेड नहीं यार ये तो इट कम्स विद व्हाट आई एम डूइंग, इट्स गोइंग टू बी देयर. तो मैं चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव. द वर्क आई डू विच आई डू बहुत सब्जेक्टिव है ये काम हमारा. किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा है. आप बिरयानी की प्लेट नहीं है कि आप सबको ही खुश करें. Absolutely. So yeah, absolutely. You can't. So it's okay. It's okay. And also, Rabia, I've noticed कि you know, it's so impressive how you actually had the confidence and you took the risk from
being an educationist, you went into content creation and then coming onto the big screen, mashallah say, in such a short span of time. मेरे करियर में बिकॉज मेरा औरतों के साथ इतना बातचीत वन ऑन वन रहा है बिकॉज ऑफ माई वर्क, I have come across lots of different stories and मैंने ये बहुत नोट किया है कि हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में औरतों को सबसे ज़्यादा जो है ना, एंग्जाइटी से ज़्यादा तो डिप्रेशन है. एंड बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, कुछ लोगों के पास तो फैमिली रीजंस होती है, किसी को इजाज़त नहीं होती है. बेचारे तो ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वो डिप्रेस्ड भी हैं. एग्जैक्टली. वो मेंटल हेल्थ का तो अवेयरनेस अब आया है ना. व्हेन यू एंड आई वर यंग तब तो था ही नहीं, और मासेस में भी नहीं आया ना. या मासेस में नहीं आया. हम लोग वो प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको एक्सपोजर मिल चुका है. बहुत से लोग नहीं हैं ऐसे. So a lot of people I see, मैं सिर्फ ये इस प्लेटफॉर्म पे बात को बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारी औरतें देखी हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं स्टार्ट करने के लिए, but they still don't and they do create excuses. ओ बच्चे हैं, I can't. ओ घर पे इन-लॉज हैं, वो तो कुछ नहीं कहेंगे, बट टाइम ही नहीं है. यू नो, मैं कहती हूँ कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं. यू कैन डू वंडर्स इन दोस 24 आवर्स. आप कितना सोओगे? 8 घंटे, चलो 10 घंटे सो जाओ. यू स्टिल हैव 14 आवर्स. हाउ कैन यू से यू डोंट हैव टाइम? एंड नाउ तो अब ऑनलाइन इतना काम होता है. बट यू नो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूँगी आपसे. अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे लिए है ना, कि ये हमारे लिए प्रोडक्टिव है, या चलो घर बच्चे तो हैं, उसके साथ साथ हम ये काम करेंगे तो कोई काम होगा. बहुत से लोगों के लिए वो घर, फैमिली, बच्चे ही वो उनकी या तो वो उस तरह मेंटली कंडीशन होती हैं, उनके गोल्स ही नहीं होते कि वो उससे भी आगे बढ़े, तो वो उसी में कंटेंट भी रहते हैं बहुत से लोग. कि हाँ, हमारा यही है और हम इसमें खुश हैं भाई, सुकून से, हमें नहीं बढ़ना आगे, हमें नहीं करना कुछ और. So to each their own आता है. हाँ, when someone is cribbing, when someone is complaining constantly कि मैं तो थक गई है करके, यही रह गया, तो in the end वो आप पर ही, आप कैसे निकलोगे? कोई आपको एडवाइस दे सकता है, कोई आपको समझा सकता है, कोई आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है. उसके बाद पहला स्टेप तो आपने ही उठाना है. And this is what recently I have learned. पर्सनल लाइफ में आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट रिसेंटली, और वन थिंग आई रियलाइज दैट मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती थी लोगों पे. माई क्लोज निटेड फ्रेंड्स, माई फैमिली, जिन पे आई ट्रस्ट, कि वो एक होता है ना, या मे बी वो शायद बचपन से वो मेंटली कंडीशन है कि कोई आएगा बचाएगा, एक होता है ना सेवियर वाला. तो बाय द टाइम आई रियलाइज नो, इट्स गोइंग टू बी मी ओनली. आई एम गोइंग टू बी द वन जो एक स्टेप लेगा, जो खुद को बचाएगा, जो अपने लिए कोई चेंज लेके आएगा. कोई भी नहीं करेगा आपके. Because Allah helps those who helps themselves. Exactly. Who help themselves. और दुनिया में कोई भी, इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो आपकी मदद करेगा ही तो कुछ होगा नहीं. आप अपने पे यकीन रखें, आगे बढ़ें, और पहला कदम तो आपने ही उठाना है, नो मैटर व्हाट. फिर आगे रास्ते बनते जाते हैं. एंड आई बिलीव जो मेरी जर्नी रही है ना, जिस तरह मैंने अपना टीचिंग करियर स्विच करके जो मैं एक्टिंग पे आई हूँ, इट्स नॉट लॉन्ग, 3 साल हुए होंगे मुझे. ओके. और इस 3 सालों में अब what I'm going through in my personal life, I realized कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ लाके खड़ा इसीलिए किया था because he knew what's going to happen. Yes. अगर मैं वो वाली रबिया होती है, मैं उसमें होती, तो मैं तो बिल्कुल टूट के बिखर जाती. And do you believe in manifestation? Oh yes, I do. Yes. How did that start for you? Because people like mental illness के साथ साथ I think लोगों को ये भी awareness नहीं थी कि a word called manifestation. Yes. अच्छा, पता है, manifestation I would say it's एक newly fashioned word है, but manifestation has always been there. अगर जैसे हम मुस्लिम घराने से हैं, हम कहते थे अच्छा सोचो, अच्छी बात करो, अच्छी बात. My mom always used to say, वो अभी भी ये कहती है, मुंह से अच्छी बात निकालो. हमेशा, तुम्हें नहीं पता कबूलियत का कौन सा वक्त है, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो, कॉल अच्छा रखो अपना. Yes. तो that's manifestation. And what is दुआ? हाँ.
आप दुआ में अच्छा ही मांगते हैं ना, Absolutely. आप अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, जो आपको अजीज है, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, बहन भाई, वो whosoever, आप अच्छा मांगते हो, तो दैट्स मैनिफेस्टेशन। Yes. और it is. आप कॉन्स्टेंटली एक चीज को मांगते रहते हो, रिपीट करते रहते हो, तो एक टाइम आता है यूनिवर्स आपको देता है वो वापस। Absolutely. बिल्कुल, Absolutely. karma is there, it's Absolutely. real। तो Absolutely. कहते हैं ना, what you sow, what you reap। Absolutely. तो आई थिंक आई बिलीव इन दैट। रिसेंटली तो बहुत ज्यादा मेरा बिलीफ इस पे बढ़ गया है, बिकॉज Yeah. मैं जैसे जैसे दुआ मांगती रही, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी होती रही, एंड आई कैन सी, मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से कि जिस तरह, मतलब मुझसे अक्सर लोग मिलते हैं और कहते हैं कि यार तुम विद इन द इंडस्ट्री इतनी जल्दी तुमने इतना प्रोग्रेस कैसे किया। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। I would also relate that to जैसे हमें पढ़ाया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के अंदर ये बात है, तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल रखना। अच्छा, बोलना Right. बहुत आसान है। Because even when you see so many reels about manifestation and they talk about pretend it's already done. Yes. Why do they say that? Yes. They say that because it, अगर इसको हम translate करें into our ज़बान, it means पे अल्लाह पे तवक्कल तो है, so consider it done. Yes, yes. कि ये होगा, अल्लाह होगा, देगा, अल्लाह करेगा अल्लाह आपके लिए। करेगा, बिल्कुल So करेगा। pretend that you are what you want to become, Yes. and you will actually be that. Yes. मैं I kid you not, I'm going to be 40 this year, inshallah. I'm 39, और ये 39 years की लाइफ में मैंने कभी इस तरह दुआएं नहीं मांगी जो अब मैं मांगने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे असल मीनिंग समझ आ रही है कि मांगना किस तरह चाहिए अल्लाह से। इस तरह मांगो कि आप ही तो देंगे और आप ही को देना है। Absolutely. कोई और कुछ नहीं कर सकता, आप ही देंगे और आप देंगे। Absolutely. तो आप, और अल्लाह ताला खुश होता है इस चीज से कि बंदे को मुझ पर कितना ट्रस्ट है कि वो मांग रहा है खुल के मुझसे, मुझे तो देना ही पड़ेगा। रबिया, कुछ ऐसा कभी कभी होता है ना, इंसान को बहुत बड़ा ऐसा फील होता है कि माय गॉड, आई एम सच अ फेलियर एंड मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, आई फेल्ड, बट देन बाद में समझ में आता है कि यार ये एक मसलियत थी। राइट? कभी आपके साथ ऐसा हुआ, एनी बिगेस्ट फेलियर दैट यू फेल्ट यू वेंट थ्रू बट इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर यू? रिसेंटली मैंने कभी पब्लिकली ये बात नहीं की, बट नाउ आई डोंट केयर। शेयर इट। My marriage is in shambles right now. Okay. और शुरू में जब ये हुआ, लास्ट ईयर की बात है, when I got to know something, तो मुझे हुआ यार 18 साल की शादी, और what did I get in return? After 18 years of loyalty, of everything, I raised 3 kids, घर संभाला, सब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अगर मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो I was micromanaging everything. नॉट अ सिंगल थिंग, या कोई नहीं कह सकता कि मैंने घर में कोई चीज खराब की हो, या मेरे काम करने से कहीं कमी हुई हो, या बच्चे को भी कोई कंप्लेन करें, या घर की कोई चीज आगे पीछे हुई हो। नो, नेवर। वो कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। बट फिर जब वो हुआ तो वो मेरे लिए बहुत डार्क फेस था, बहुत डार्क फेस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट आउट ऑफ दैट बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ द गुड पीपल अराउंड मी। यस, मुझे मेरे लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक पूरा खड्डा खुदा हुआ है और आई वाज जस्ट अबाउट टू, उन्होंने वो नेट फेंका, नहीं वहां नहीं जाना है रबिया तुमने, दैट्स अ डार्क फेस, वहां से निकलना बहुत मुश्किल। वो सब लोगों ने मिलके मुझे, तो मेरी दोस्तें, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, मतलब वो इस तरह मेरे अल्लाह ताला नहीं भेजा उनको। ऐसे मोमेंट्स पे नजर आ जाता है who your true friends are and who is standing right behind you. And मुझे इतना बड़ा सपोर्ट, मेरी पूरी दुनिया में मेरे दोस्त हैं, कहाँ से मुझे कॉल्स मैसेजेस नहीं आए होंगे, कहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं आया। पीपल, लोग उम्र पे जा रहे हैं और मुझे पिक्चर्स भेज रहे हैं विदाउट आस्किंग देम कि हम तुम्हारे लिए दुआ करें, तुम्हारी दुआओं में हो रहा है, तुम्हारी दुआओं में। तो वो सब क्या है, मतलब वो चीज, और वो चीज जब मैंने देखी तो मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार ये मैंने क्या किया। और बहुत सॉलिड लव मैरिज थी मेरी, बहुत हार्डकोर लव मैरिज थी मेरी, और वेरी ड्रामेटिक। बट जो भी हुआ ना, मैंने बोला यार ये मैंने
किया क्या है, you know. बट फिर बाय द टाइम आई रियलाइज नहीं, अल्लाह ताला ने पहले से मेरे लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए थे. मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया, मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया, मेरा करियर बना दिया, मुझे एक जगह लाके खड़ा कर दिया, बिकॉज ही न्यू कि क्या होने वाला है. यस यस, तो वो मुझे गिरना तो पहले से ही आपको पकड़ लिया. एग्जैक्टली. जब मेरा रवि नहीं चाहता कि मैं गिरूं, तो मैं क्यों गिर रही हूँ एक चीज में, मैं क्यों जा रही हूँ. कुछ टाइम के लिए आया, सेल्फ डाउट भी हुआ कि यार ये क्यों, कैसे, क्या. बट फिर देन मैंने कहा नो, इट्स नॉट मी, it's the other person. Absolutely. It's not me. It was Yes. never me. Yes. So why do I have to feel sad or bad for myself? ठीक है, एक टाइम गुजरा, वो था मेरे नसीब में. उसके बाद मुझे उसके बदले 3 इतने अच्छे बच्चे मिले. Alhamdulillah. And health मिली. Exactly. और मैं ऐसा नहीं कि वो 18 साल मेरे बहुत बुरे गुजरे, बहुत अच्छी शादी गुजरी हमारी. तो मैं पॉजिटिव चीजें निकालूंगी उसमें से. Absolutely. तो and that's how we can survive. Absolutely. So yeah. So no, I'm really glad that you spoke out your heart with me on this podcast. One last question for my clients who are always asking us about skin related questions, because we don't have much time left. You know how you go for your shoots to the dramas and stuff. तो मुझसे बहुत सारे clients, जैसे मैंने कुछ ड्रामे किए तो बहुत सारे clients कहते थे कि नौरीन आंटी, how do you tackle your, you know, skin routine and how do you look so fresh on the screen? आप इतनी सारी lights होती हैं, does that affect your skin, you know? How do you manage to look up to such a beautiful skin that you have? What's your home care routine like? My clients would love to know about first that. of all, thank you so much. इसका क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को देती हूँ, बिकॉज जीन्स से बहुत अच्छी स्किन मिली मुझे उनके थ्रू. बट या एज बढ़ती जाती है तो ऑब्वियसली आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो अंदर आपके खत्म होते रहते हैं, तो आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है. You do look very young on screen, mashallah. I mean, you don't look the age that you quoted us. Yes, I don't play my age on screen. I do get बड़े वाले roles, but yeah, it's acting. I'm alhamdulillah, I'm confident enough that I know what I can pull off. और मुझे वो रेस में भागना ही नहीं है कि मैं बड़े बच्चों की माँ क्यों बनूं, मैं ये मैं वो. नो, मुझे, मैं देखती हूँ स्क्रिप्ट क्या है, मेरा कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, और मुझे कितना मार्जिन मिल रहा है अपने क्राफ्ट को दिखाने के लिए. Yes. So that's all. You know, recently I saw your a clip of some drama. I can't recall the name. Maybe you know it. You've become Zainab Raza's mother. Oh yes, yes. So I've been her mom too, by the way. Oh, okay. In her first project, that was my first project and hers also. That was Takabbur by Moomal Productions. And to maine kaha, okay, so it's so surreal to see कि when I was going through your Instagram account and I saw कि I'm like, oh, okay, ये भी ज़ैनब की मम्मी बन चुकी है, you know. Yeah, वो तो अभी on air है project. वो अभी चल भी रहा है. Yeah. What's the name of that? Rahmat on ARY. Yes, absolutely. Yes. Thank you so much, Rabia, for taking out time for us. Thank you. And I'm sure my followers are going to learn a lot from this podcast and what you shared with us, your feelings and your journey, and you know how your transitions and your beliefs in manifestation. These are the core, I think, ये वो important बातें हैं. मैं चाहती हूँ हर औरत को ये बातें सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए. बिल्कुल. And we should be a role model for many women out there. Yes, definitely, definitely. I think कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ती है जब आपको इतने सारे लोग देख रहे होते हैं और आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. yes. फिर you have to be very careful. बात केयरफुल की भी नहीं, अगर आपके मॉरल्स सही है ना और आप कंटेंट हो, आप सेट हो, तो आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ. Yes, absolutely. Yeah, when you can figure out what's right and wrong. Absolutely. Yeah. Absolutely. Thank you so much. Thank you everybody for watching the podcast with Rabia Afsar today. Please DM us if you have any questions and we will definitely get through to Rabia again. If any of our followers have questions for you, you can reply those back to us. And inshallah, we'll invite her soon. Thanks once again. Thank you, Rabia. Everybody have a wonderful day and we look forward to recording the next episode in a couple of minutes for you. Thank you, Rabia. Thank you so much.